Hello student, today I am going to discuss part 4 of molecular basis of inheritance. In this part we will discuss about the Michelson and Stahl experiment. First we will discuss what is DNA replication, why and when DNA replication takes place, and what is the meaning of semi-conservative nature of replication. A type of replication in which one strand of daughter DNA is derived from the parent while the other is formed anew. Actually, at the time of replication, this is the parent DNA. At the time of replication, there is a separation of both the strands takes place, and new strand shown in blue color, new strand is formed against the template. So this parental strand which is separated, it acts as a template, and according to that template a new strand shown in blue color is formed. So here this is the parental strand. When two new strands after replication is formed, so the parental strand they get separated and two new strands shown in blue color is formed. Here we can see that this one is the parental strand and this one is the new strand. Here also this shown in pink color is the parental strand and this one is the new strand. So this type of replication is semi-conservative, in which one of the strand of newly formed DNA is parental and other strand is a new strand. Now a question arises कि why and when this replication of DNA takes place. जैसा कि हम जानते हैं कि at the time of mitosis and meiosis the number of chromosomes increases and they divided to the two new cells. माइटोसिस में हमने देखा है कि if there are 46 chromosome in somatic cell of human being, after cell division new cells are formed. They also contain 46 number of chromosomes. तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है कि यहाँ पर 46 नंबर क्रोमोसोम हैं और डिवाइड होने के बाद भी दोनों में 46 हैं. इसका मतलब यहाँ पर रिप्लिकेशन हुआ होगा, रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए यहाँ पर हुआ होगा, जिसकी वजह से इन क्रोमोसोम्स का नंबर डबल हो गया होगा. सेल डिवीजन में या सेल साइकिल में हम एस फेज पढ़ चुके हैं. So S phase is the stage of cell cycle in which replication of DNA takes place. ये replication of DNA सेल साइकिल के S phase में होता है, जिसमें क्रोमोसोम नंबर डबल हो जाते हैं और उसके बाद ये जब डिवाइड होते हैं then daughter cells they contain equal number of chromosomes. Next is Michelson and Stahl experiment. Semi-conservative replication of DNA was proved by the work of Matthew Michelson and Franklin Stahl in 1958. Matthew Michelson और Stahl ने 1958 में एक एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन किया जिसमें उन्होंने प्रूव किया कि जो DNA रेप्लिकेशन है सेमी कंजर्वेटिव होता है, यानी जो न्यूली फॉर्म्ड डीएनए है उसमें एक स्ट्रैंड पैरेंटल होती है और दूसरी स्ट्रैंड नई होती है. इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए सबसे पहले उन्होंने जो फर्स्ट स्टेप था, दे ग्रू ई कोलाई फॉर मैनी जनरेशन इन मीडियम हैविंग आइसोटोप्स ऑफ नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ N15 अमोनियम क्लोराइड. अमोनियम क्लोराइड एक सोर्स ऑफ नाइट्रोजन है जहाँ से नाइट्रोजनस बेसिस को बनने के लिए नाइट्रोजन मिलता है, और माइचेल्सन स्टॉल ने नॉर्मल नाइट्रोजन की जगह रेडियो एक्टिव नाइट्रोजन को न्यूट्रिएंट मीडियम में सप्लाई किया. टिल द बैक्टीरिया डीएनए बिकम कंप्लीटली लेबल्ड विद द हैवी आइसोटोप्स ऑफ नाइट्रोजन.
After the replication of DNA of E. coli for many generations in N15 medium, it was found that both the strands of DNA contain N15 as constituents of purines and pyrimidine. This heavy DNA molecule N15 could be distinguished from the normal DNA N14 by centrifugation in cesium chloride density gradient. यहाँ पर इन्होंने क्या किया कि जो नॉर्मल नाइट्रोजन वाला डीएनए था, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये ब्लू कलर से N14 और N14 इसकी दोनों स्ट्रैंड्स नॉर्मल नाइट्रोजन इसमें प्रेजेंट है। इसने कई जनरेशन तक इन N14 यानी नॉर्मल नाइट्रोजन वाले डीएनए को एक N15, ये एक ऐसा न्यूट्रिएंट मीडियम है जिसमें N15 एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप नाइट्रोजन का लिया गया है। इसमें कई जनरेशन तक इनको रेप्लिकेशन करवाया गया। बाद में ये देखा गया कि जो न्यूली फॉर्म्ड डीएनए है उसकी दोनों स्ट्रैंड, बोथ द स्ट्रैंड्स गेट्स लेबल्ड विद हैवी नाइट्रोजन और रेडियो एक्टिव नाइट्रोजन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि N15 दोनों स्ट्रैंड्स, यहाँ ब्लू कलर से हमने N14 शो किया था, पिंक कलर से हम N15 शो कर रहे हैं, तो यहाँ दोनों स्ट्रैंड N15 से लेबल्ड हो गई हैं। अब ये किस जगह पर लेबल्ड होती हैं ये हमें मालूम है कि जो न्यूली फॉर्म डीएनए है इट्स ए पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। जो नई स्ट्रैंड बनती है ये न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर होता है और न्यूक्लियोटाइड 3 चीज़ों से मिलकर बने हुए होते हैं, एक फॉस्फेट, दूसरा डीऑक्सीराइबोज शुगर और तीसरा नाइट्रोजिनस बेसेस। नाइट्रोजिनस बेसेस बनने के लिए हम नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है और अगर हम इस रेप्लिकेशन को एक ऐसे मीडियम में करते हैं जिसमें N15 नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो जितने भी नाइट्रोजिनस बेसेस होंगे उनके अंदर जो नाइट्रोजन ऐड होगा वो N15 वाला होगा। तो कई जनरेशन तक इस प्रोसेस को करने के बाद जो हमें डीएनए मिलता है उसमें दोनों स्ट्रैंड्स में जो नाइट्रोजिनस बेसेस होते हैं उसमें N15 इनकॉर्पोरेट हो चुका होता है। और इसका पता करने के लिए जब एक सीसियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट में इसका सेंट्रीफ्यूगेशन किया जाता है तो ये बॉटम में आता है। इस जगह पर आप देख सकते हैं कि ये सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद अब इसका जो सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट है या इसकी जो डेंसिटी है वो सीसियम क्लोराइड की डेंसिटी से मैच करती है और इस जगह पर ये सीसियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट में हमें दिखाई देता है। यहाँ पर एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं कि सीसियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट क्या चीज़ होती है। एक टेस्ट ट्यूब में हम सीसियम क्लोराइड लेते हैं। इस सीसियम क्लोराइड को, इसके अंदर हमने सीसियम क्लोराइड ले लिया है। इस सीसियम क्लोराइड का जब सेंट्रीफ्यूगेशन किया जाता है तो सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद जो हमें सीसियम क्लोराइड मिलता है वो एक डेंसिटी ग्रेडियंट उसमें पाया जाता है, यानी यहाँ पर जो सीसियम क्लोराइड है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी और धीरे धीरे ये डेंसिटी कम होती चली जाएगी। यहाँ पर डेंसिटी डिक्रीज हो रही है इन अपवर्ड डायरेक्शन। डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, यानी इक्वल वॉल्यूम में अगर किसी दो इक्वल वॉल्यूम के अंदर जिसका मास ज़्यादा होगा वहाँ डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो जब सेंट्रीफ्यूगेशन किया जाता है सीसियम क्लोराइड का, इसके अंदर हमने सीसियम क्लोराइड लिया है, जब सेंट्रीफ्यूगेशन किया जाता है तो एक डेंसिटी ग्रेडियंट, यानी इस जगह पर डेंसिटी आप ज़्यादा देख रहे हैं, यानी पर यूनिट वॉल्यूम यहाँ पर ज़्यादा सीसियम क्लोराइड है, ऊपर
कम है, क्योंकि इसको हम हाई स्पीड पर सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं। अब इसका फ़ायदा ये होता है कि एक डेंसिटी ग्रेडियंट यहाँ डेवलप होता है। ग्रेडियंट का मतलब है स्लो इंक्रीज और डिक्रीज। तो यहाँ पर डेंसिटी नीचे से ऊपर की तरफ डिक्रीज हो रही है, बॉटम में डेंसिटी ज़्यादा है। जब हम किसी भी मटेरियल को, सपोज इस जगह पर जो सीसियम क्लोराइड की डेंसिटी है वो 5, सपोज हम एक नंबर इसको देते हैं 5, तो कोई भी सब्सटेंस जिसकी डेंसिटी 5 है, अगर उस सब्सटेंस को, उस केमिकल को इसके अंदर डालकर हम सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं तो वो इसी जगह पर आकर अपने आप को अरेंज करेगा, यानी उस सब्सटेंस की डेंसिटी सीसियम क्लोराइड की डेंसिटी से मैच करेगी और ये यहाँ पर अरेंज हो जाएगा। किसी भी सब्सटेंस का अगर डेंसिटी सपोज 10 है तो वो नीचे आकर अरेंज हो जाएगा, और अगर लाइट है तो ये इससे ऊपर, सपोज 2 है तो यहाँ हो जाएगा, 10 है तो ये। तो यहाँ होता ये है कि किसी भी सब्सटेंस को जब सीसियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट में हम सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं तो एक पोजीशन पर आकर रुक जाता है जहाँ पर उसकी डेंसिटी सीसियम क्लोराइड की डेंसिटी से मैच करती है। Second point, they took E. coli cells grown in N15 and transferred them to a medium containing N14. लास्ट स्टेप में मैसेल्सन स्टाल ने जो एक नॉर्मल डीएनए था N14, इसको एक N15 वाले मीडियम में कई जनरेशन तक कल्चर किया था, और उसके बाद जो उन्हें डीएनए मिला था उसकी दोनों स्ट्रैंड रेडियो एक्टिवली लेबल्ड थी विद हैवी आइसोटोप्स और N15 नाइट्रोजन। आफ्टर 20 मिनट्स, बिकॉज ई कोलाई कंप्लीट्स इट्स लाइफ साइकिल इन 20 मिनट्स, तो 20 मिनट के बाद क्या होता है कि वन स्ट्रैंड इज लेबल्ड विद N15 एंड अदर विद N14। 20 मिनट्स के बाद अगर इस डीएनए को, जिसकी दोनों स्ट्रैंड N15 से लेबल्ड हैं, अगर इसको हम एक N14 वाले मीडियम में 20 मिनट्स तक के लिए छोड़ देते हैं तो यहाँ पर एक हाइब्रिड डेवलप होता है। हाइब्रिड का मतलब कि दो स्ट्रैंड्स यहाँ पर बनेंगी, क्योंकि ये स्ट्रैंड रेप्लिकेशन के टाइम पर इस तरह से ये ओपन हो जाएंगे और जो न्यू स्ट्रैंड्स है वो यहाँ पर बनेगी। तो ये जो ब्लू कलर से हम शो कर रहे हैं ये N14 वाली स्ट्रैंड है, और रेड कलर से ये N15 है जिसे हमने प्रिपेयर किया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो तरह का डीएनए में दो तरह की स्ट्रैंड प्रेजेंट होगी, एक N14 होगी और एक N15 होगी। तो इसको हम हाइब्रिड कहते हैं बिकॉज दे कंटेन both type of DNA. One is labeled with heavy isotope or N15 nitrogen and other with N14 nitrogen. इसको जब सीसियम क्लोराइड के डेंसिटी ग्रेडियंट में सेंट्रीफ्यूगेशन किया जाता है देन इट एक्यूमुलेट्स हेयर, ये इस जगह पर आकर एक्यूमुलेट होता है। इससे पहले हम देख चुके हैं कि जो हमने N15 यानी इस डीएनए का जब सेंट्रीफ्यूगेशन किया था तो ये डीएनए कुछ इस जगह पर आकर एक्यूमुलेट होता है, क्योंकि N15 का मास ज़्यादा होगा, क्योंकि एक नाइट्रोजन का मास N15 है, दूसरे का भी N15 है। तो टोटल अगर हम इसको दो नाइट्रोजन का मास देखें तो 30 हो जाता है। यहाँ पर अगर दो नाइट्रोजन का मास देखें, एक N15 है, N14 है, तो इसका मास इनके मास से कम होगा, तो ये इस जगह पर एक्यूमुलेट हो जाते हैं। इसके बाद आफ्टर नेक्स्ट 20 मिनट यानी आफ्टर 40 मिनट्स जब इस हाइब्रिड डीएनए को फिर से N14
वाले मीडियम में इसको फिर से 20 मिनट्स तक के लिए छोड़ा जाता है। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर दो स्टैंड थी, एक ब्लू कलर की स्टैंड थी, ये सेपरेट हो जाएगी। दूसरी रेड कलर की स्टैंड है, ये भी सेपरेट हो जाएगी और एक टेम्पलेट की तरह काम करेगी, क्योंकि ये N14 नाइट्रोजन वाला एक मीडियम है। इसके यहाँ जो नई स्टैंड बनेगी उसमें जितने भी नाइट्रोजनस बेसेस होंगे उनके अंदर N14 प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पर जो नई स्टैंड होगी इसे हम ब्लू कलर से शो कर रहे हैं, यहाँ पर जो नई स्टैंड होगी इसे भी ब्लू कलर से शो कर रहे हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं एक ऐसी स्टैंड होगी जिसमें दोनों में N14 प्रेजेंट होगा और एक ऐसी स्टैंड होगी जिसमें N14 प्रेजेंट होगा। So DNA collected after 40 minutes after another generation or generation second composed of equal amount of this hybrid DNA N15 and N14 and light DNA N14 and N14। यहाँ पर N14 है, यहाँ N15 है। तो ये सेकेंड स्टेप में हमें मिलता है। So here once again diagrammatically we can understand this experiment कि शुरू में जो DNA था वो N14 से लेबल्ड था। दोनों स्ट्रैंड ग्रीन कलर से हम शो कर रहे हैं, ये N14 स्ट्रैंड है। इसको एक ऐसे कल्चर मीडियम में ग्रो किया जाता है कई जनरेशन तक, जिसके अंदर N15 नाइट्रोजन प्रेजेंट है। इसके बाद जो नाइट्रोजन बनता है इसमें एक और कई जनरेशन तक जब इसको हम छोड़ते हैं तो यहाँ पर फाइनली हमें ऐसे DNA मिल जाते हैं जिसकी दोनों स्ट्रैंड N15 से लेबल्ड होती हैं। तो यहाँ पर भी N15 होगी, इसकी दूसरी स्ट्रैंड भी N15 से लेबल्ड हो चुकी है। यहाँ भी N15 and both the strands gets labeled with heavy isotopes of nitrogen, that is N15। इसमें से एक नाइट्रोजन स्ट्रैंड को हम लेते हैं और इसको एक नॉर्मल N14 वाले मीडियम में, यहाँ पर जो मीडियम है इसके अंदर N14 नाइट्रोजन है, यानी नॉर्मल नाइट्रोजन है। जब इसको इसके अंदर कल्चर करवाया जाता है, इसको डेवलप किया जाता है, तो इसके बाद जो दो स्ट्रैंड डेवलप होती है, आप यहाँ देख सकते हैं कि ये N15 वाली स्ट्रैंड है और ये N14 वाली स्ट्रैंड है, यानी ये हाइब्रिड मिलता है। इसके अंदर दोनों तरह की। इससे पहले जब इस DNA का सेंट्रीफ्यूगेशन किया जाता है तो जो बैंड मिलता है हमें ये बॉटम में मिलता है, क्योंकि इसकी दोनों स्ट्रैंड में N15 है। तो ये एक हैवियर नाइट्रोजन वाले नाइट्रोजनस बेसेस यहाँ प्रेजेंट हैं, तो इसका बैंड हमें बॉटम में मिलता है। सेकेंड केस में क्योंकि ये हाइब्रिड है, इसमें एक स्ट्रैंड N14 है और एक N15 है, क्योंकि ये इसका वेट इससे कम होगा। यहाँ दोनों N15 थे स्ट्रैंड में, यहाँ एक में N15 एक में N14 है, तो ये इससे थोड़ा लाइटर होंगी। तो जो हमें सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद जो बैंड मिलता है ये एक इंटरमीडिएट पोजीशन हमें मिलती है, और इस इंटरमीडिएट पोजीशन की वजह से ये सीशियम क्लोराइड में एक इंटरमीडिएट पोजीशन मिलती है। इसके बाद आफ्टर अगेन 20 मिनट्स, और टोटल टाइम अगर हम देखें तो 40 मिनट्स, क्योंकि 20 मिनट इधर हो गए और 20 मिनट इधर। तो आफ्टर 40 मिनट्स इसको भी हम N14 वाले न्यूट्रिएंट मीडियम में डेवलप करते हैं। यहाँ पर क्या होगा, जो स्ट्रैंड्स बनती हैं ये दो तरह की स्ट्रैंड बनेंगी। यहाँ पर इसकी दोनों स्ट्रैंड N15 वाली होंगी, ये दोनों स्ट्रैंड
ये N14 वाली स्ट्रैंड होंगी दोनों, यहाँ पर भी ये N14 होगी, लेकिन ये हाइब्रिड प्रोड्यूस होता है, यानी इसमें एक स्ट्रैंड जो रेड स्ट्रैंड है ये N15 होगी और जो ग्रीन स्ट्रैंड है ये N14 होगी। तो ये दोनों बीच की जो दो स्ट्रैंड हैं ये हाइब्रिड है, जैसा कि हमें यहाँ पर मिला था। और इसका जो बैंड हमें मिला था सीशियम क्लोराइड डेंसिटी के टाइम में, ये बीच में मिला था इंटरमीडिएट पोजीशन पर। तो जब इसमें भी हम इस पूरे कंटेंट का जब साइंटिफिकेशन किया जाता है तो यहाँ पर दो स्ट्रैंड हैं, दो टाइप की यहाँ पर डीएनए प्रेजेंट हैं, एक नॉर्मल N14 वाली हैं और दूसरी हाइब्रिड है। तो नॉर्मल, क्योंकि नॉर्मल में दोनों स्ट्रैंड में N14 प्रेजेंट है जैसा यहाँ पर है, तो इसका क्योंकि ये लाइटेस्ट चेन है तो इसका जो बैंड आता है वो सबसे ऊपर आता है टेस्ट ट्यूब में। हाइब्रिड का जैसे यहाँ पर इंटरमीडिएट पोजीशन पे आया था तो यहाँ पर भी एक इंटरमीडिएट पोजीशन पे आया था। तो अब हमें तीन तरह के बैंड मिल गए हैं। यहाँ पर N15 वाले डीएनए को साइंटिफिकेशन किया था तो बॉटम में बैंड मिला था, क्योंकि ये एक हाइब्रिड नहीं है, ये प्योर नाइट्रोजन है लेकिन इसमें हैवी आइसोटोप्स हैं। रिप्लिकेशन के बाद जो बैंड हमें मिला वो एक इंटरमीडिएट पोजीशन पे था। और जब हमने N14 वाले डीएनए को हमने साइंटिफिकेशन किया तो एक सबसे सुपरफिशियल बैंड मिला। तो यहाँ पर तीन बैंड मिलते हैं, यानी रिप्लिकेशन के बाद जो बैंड मिलता है उसमें हम ये देख रहे हैं कि एक, क्योंकि जो पेरेंटल स्ट्रैंड है इसमें दोनों में N15 प्रेजेंट है, लेकिन रिप्लिकेशन के बाद इंटरमीडिएट बैंड का मिलना ये शो करता है कि इसमें एक N15 स्ट्रैंड होगी और दूसरी N14 स्ट्रैंड होगी। So this proves that DNA replication is semi-conservative.